बेटा आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ haloarine. Haloarine means one popular example is chlorobenzene. Second example is bromobenzene. Formula is C6H5Cl. C6H5Br. It means one hydrogen displaced from halogen. Preparation of haloarine. Haloarine means one hydrogen of benzene displaced are substituted by halogen. X halogen, F fluorine, Cl chlorine, Br bromine and I iodine. F attach fluorobenzene, Cl chlorobenzene, Br bromobenzene and I iodobenzene. Electrophilic substitution of arene. Electrophilic substitution reactions in benzene. Halogenation of aromatic ring. Aromatic ring का मीन्स क्या है? और सिंपल मीन्स है all 6 hydrogen attach aromatic ring 1, 2, 3, 4, 5 and 6. If hydrogen displace are substituted by any electrophile reagent, then it is called electrophilic substitution reactions. H कैसा डिस्प्लेस होगा? एज ए इलेक्ट्रोफाइल. E क्या है हमारा? प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल reagent. Electrophilic substitution reaction in benzene or arene. Halogenation of aromatic ring. Reactions कैसे होती है? The reactions progress in the presence of anhydrous AlCl3. AlCl3 we have as a Lewis acid. Second is a iron filling and chlorine gas. The first is formed FeCl3. It also we have as a Lewis acid. It means electrophilic substitution reactions in benzene progress in the presence of anhydrous AlCl3 or FeCl3. The role of AlCl3 here. AlCl3 aluminium bonded with 3Cl 1, 2 and 3. The aluminium outer shell carries a 6 electron. Then it we have as a Lewis acid because number of electrons in aluminium outer shell in anhydrous AlCl3 only 6 electrons. Reactions of benzene example with chlorine in the presence of AlCl3. Hydrogen of arene substituted by Cl and formation is chlorobenzene. This is an example of electrophilic substitution reactions in arene and arene to chlorobenzene. यह reactions कैसे प्रोग्रेस हुई होगी? The reactions progress
सिंपल भाषा में बोलें तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, मैकेनिज्म। कैसे रिएक्शन प्रोग्रेस हुई होगी। Cl homo diatomic molecules in the presence of AlCl3. The bond is between Cl break down in a heterolytic form. Heterolytic form means the electron shifting from one chlorine to second chlorine atom, and one is chlorine 7 electron 2 4 6 1 7 2 4 6 and 1 in a bond 7. The electron shifting from one chlorine to another chlorine. Then this chlorine carries a positive charge and number of electrons in outer shell is only 6. Then it behave as a electrophilic reagent. And second is a Cl carries electrons pair and negative charge. It bonded with AlCl3 and formation of AlCl4. AlCl4 means the octet of aluminum is completed in AlCl4. And first is the formation of short form AlCl4 carries a one negative charge. What is the role of anhydrous AlCl3? The role of anhydrous AlCl3 is, first is it helps breaking of heterolytic cleavage of Cl2 molecules and formation of chlorinium electrophile reagent. Number 2, it behave as a halogen carrier because it take electrons from chloride ions and form is a AlCl4 one negative charge ionic species. Then two role of AlCl3 here. First is it help in a breaking of CCl bond in heterolytic form. Second, it carry of halide ions. During these reactions, the first is formed chlorinium ions. It behave as a electrophile reagent. Then chlorinium ions behave as a electrophile reagent. Electrophile reagent, electron deficiency species. Hydrogen bonded with hydrogen bonded with aromatic nucleus of benzene. In the presence of chlorinium ions, we have as a electrophile. The bond between first and second carbon is transferred from one carbon to another carbon. This is a shifting of pi bond. The electron shifting from one carbon to another carbon. Then this carbon is carry positive charge and second carbon is carry negative charge and same time bonded with hydrogen. And formation of this species, one end is a negative, means one carbon is a negative, second is a positive. Chlorinium electron deficiency species, it required is a electrons. तो ये बेटा कहाँ जाएगा, जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा. देन क्लोरीनियम आयंस मूव, मान लेते हैं कार्बन फर्स्ट है एंड this carbon is a positive, hydrogen attached from this carbon and
क्लोरीनियम आयंस कम टू नियर ऑफ फर्स्ट कार्बन, मान लेते फर्स्ट कार्बन है, इट कैरीज अ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज. Cl is carry 6 electrons in their respective outer shell and behave as a electrophile reagent. It required is electrons. तो ये जो कार्बन है इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने 1 इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरीन को दे दिया तो इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया. एंड व्हाट इज बॉन्डेड बाय द न्यू सिंगल बॉन्ड बिटवीन carbon and chlorine are halogen and form is a carbocations. ये क्या बन जाएगा बेटा? सेकेंडरी कार्बोकैटायंस. Again is the carbocations not is a stable species. It try to neutralize. वो क्या कोशिश करेगा कि न्यूट्रलाइज हो जाए. तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कहां की ओर जाएंगे? टूवर्ड साइड ऑफ द कार्बन. देन हाइड्रोजन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव. जब हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा बेटा? पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा. तो क्या होगा? दिस कार्बन इज कैरी इलेक्ट्रॉन्स पेयर एंड नेगेटिव चार्ज. दिस कार्बन इज अ पॉजिटिव. अब क्या होगा? 1 कार्बन इज अ पॉजिटिव, 1 कार्बन इज अ नेगेटिव. तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा. जैसे 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा? इसका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा. अब 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, जैसे इसको देगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के पास है. तो क्या होगा? दोनों मिलके क्या कर लेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन. दोनों कार्बन के बीच में क्या हो गया? एंड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया. एंड द प्रोडक्ट इज क्लोरोबेंजीन. तो आपका हाइड्रोजन किसने डिस्प्लेस किया? क्लोरीनियम आयंस ने. क्लोरीनियम आयंस कैसा था? इलेक्ट्रोफाइल था. जिसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयंस displace are substituted by the electrophilic chlorinium ions are electrophilic substitution reactions in arene and formation of chlorobenzene. तो बेटा यहां देखना, ये आपका एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायंस बना था. कौन सा था? सेकेंडरी था. किस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है? अभी काउंट कर देते हैं आपके सामने. फर्स्ट एंड सेकंड पे. तो ये इसका फर्स्ट रेजोनेंस है, स्टेबल होता है थोड़ा सा ना. सेकेंडरी कार्बोकैटायंस है, कैसे होगा देखते हैं जरा. अभी फर्स्ट जो आप सेकंड कार्बन पे जो कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था. वो ट्रांसफर होके कहां जाता है? 4 नंबर पे जाता है. इसका मीन्स है पॉजिटिव चार्ज नॉट इज अ लोकलाइज ऑन द कार्बन, इट इज अ डीलोकलाइज. फिर क्या होगा? अभी कहां पर? 4 नंबर पे. फिर 4 नंबर से वो ट्रांसफर कहां जाएगा? 6 नंबर पे जाएगा. And formation of another resonance of carbocations. Then carbocation have 1, 2 and 3rd resonance structures. Then it is a stable. कुछ पिको सेकंड के लिए स्टेबल होता है. फिर ये हाइड्रोजन आयंस को निकाल देगा एंड कार्बोकैटायन चेंज इनटू क्लोरोबेंजीन. दिस इज अ प्रोसेस और मैकेनिज्म एरीन टू क्लोरोबेंजीन. The process is electrophilic substitution reactions. ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन आयंस को क्लोरीनियम आयंस सब्स्टिट्यूटेड करता है. अगर हम मान के चलें कि हमने किसको ले लिया, थोड़ा सा और समझाते हैं. हाइड्रोजन अटैच फ्रॉम एरोमेटिक न्यूक्लियस, रिएक्शन विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन फिलिंग एंड क्लोरीन गैस तो पास ही कर रहे हैं. फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन और साथ में क्या निकल जाएगा? वाई प्रोडक्ट इज HCl. तो क्लोरोबेंजीन बन गया. अब आपका मन होगा ब्रोमोबेंजीन बनाने का, तो कैसे बनाएंगे बेटा? हाइड्रोजन अटैच फ्रॉम एरोमेटिक न्यूक्लियस, ब्रोमीन in the presence of
एल्युमिनियम ट्राइब्रोमाइड, और हम किसको लिख सकते हैं FeVr3। द प्रोडक्ट इज ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr। अब थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण रिएक्शन लिखते हैं। अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना है तो क्या होगा? बेंजीन, चलिए इसको थोड़ा सा यहां लेते हैं। आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन जब होता है तो रिएक्शंस का नेचर कैसा होता है? रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। रिवर्सिबल रिएक्शंस का मींस क्या है? आफ्टर द सम टाइम रिएक्शन इन एट डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस। देखते हैं कैसे रिएक्शंस प्रोग्रेस करती है। बेंजीन हाइड्रोजन अटैच फ्रॉम एरोमेटिक न्यूक्लियस। इस रिएक्शंस को हमने एल्काइल हैलाइड में भी स्टडी किया था। द रिएक्शंस नेचर इज रिवर्सिबल। द हाइड्रोजन of arene displaced by iodine, and reaction's nature is a electrophilic substitution, and byproduct is a Hi, hydrogen iodide, hydroiodic acid. The reaction is a reversible nature। आप चाहते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, तो ली चार्टेलिया प्रिंसिपल क्या कहता है? या तो हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या कर दें? इंक्रीज कर दें, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दें, तो रिएक्शंस मैक्सिमम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। हम ऐसा तो है नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना मींस निकालना उतना आसान नहीं है। तो हम क्या करते हैं? वी एडेड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं? वन इज HNO3, second is mercuric oxide, and one is iodic acid HiO3। अगर हम HiO3 को मिलाएंगे तो होगा क्या? वाई प्रोडक्ट किया है यहाँ पर HI, किसको ऐड कर दिया आपने? HiO3 आयोडिक एसिड को। द प्रोडक्ट हाइड्रोआयोडिक एसिड रिएक्ट विथ HiO3 एंड फॉर्मेशन ऑफ 3 molecules of water and 3I2। क्या हुआ? रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि आयोडीन हमारा क्या है? आयोडीन हमारा इस रिएक्शंस में रिएक्टेंट है, तो आयोडीन मींस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। HI क्या है? प्रोडक्ट है। HI की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? ऐसा हम क्यों करें? क्योंकि HI रिएक्ट विथ आयोडिक एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ iodine, then concentration of HI decrease and concentration of reactant iodine increase, the reactions progress in a maximum forward direction। और कौन सा तरीका हो सकता है किसको HI की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने के लिए? देखते हैं। 2HI प्लस HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड, क्या फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा? वाटर प्लस मर्क्यूरिक आयोडाइड। देखिए क्या होगा, जैसे आपने HI को HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड को मिलाया तो प्रोडक्ट हाइड्रोआयोडिक एसिड की कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो गई है। सेकंड कौन सी रिएक्शंस होती है उसकी बात कर लेते हैं। कौन सी रिएक्शंस है? विथ HNO3। चलिए देखते हैं क्या बनेगा। वन इज 2NO2, सेकंड इज 2H2। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। कौन बचा? आयोडीन। इसका मींस क्या है? आपकी जो कंसंट्रेशन है वो HI की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और रिएक्टेंट आयोडीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। इट मींस इन द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रिक एसिड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आयोडिक एसिड, द रिएक्शंस प्रोग्रेस इन अ मैक्सिमम फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी बेंजीन आयोडीन मैक्सिमम रिएक्ट होके आयोडोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। द रोल ऑफ HNO3, HgO और HiO3 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आती है साइड चेन।
हेलोजिनेशन, साइड चेन हेलोजिनेशन का मीन्स क्या है बेटा? इसको सिंपल रिएक्शन से हम लोग स्टडी करते हैं। अभी हम सीधा किसका डिस्प्लेस कर रहे थे, सब्स्टिट्यूट कर रहे थे हाइड्रोजन का, क्योंकि बेंजीन था। अब हमने लिया मिथाइल बेंजीन इज कॉल्ड टॉलीन। रिएक्शन विथ Cl2 in the presence of AlCl3. AlCl3 is an anhydrous. The product is CH3 Cl. ये कौन सी लोकेशन कहलाती है बेटा बेंजीन में? ऑर्थो, ऑर्थोक्लोरोटॉलीन। सेकंड इज ये कौन सी लोकेशन है? पैरा, पैराक्लोरोटॉलीन। कौन सा मैक्सिमम प्रोडक्ट होता है? साइमेट्रिकल कौन सा बेटा? पैराक्लोरोटॉलीन, है ना? तो इसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ये कौन सी पोजीशन कहलाती है? ऑर्थो। तो ये कौन सा होगा? ऑर्थोक्लोरोटॉलीन। इसका प्रोडक्ट थोड़ा कम बनेगा क्योंकि आपकी पैरा पोजीशन क्या है? साइमेट्रिकल। पैराक्लोरोटॉलीन मेजर एंड ऑर्थोक्लोरोटॉलीन इज माइनर प्रोडक्ट। यहां पर क्या हुआ? हाइड्रोजन या तो ऑर्थो पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ है, या कहां से डिस्प्लेस किया आपने? पैरा पोजीशन से, ठीक है ना? हमारा टॉपिक क्या है? साइड चेन हेलोजिनेशन। दिस रिएक्शंस प्रोग्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इस रिएक्शंस को हम किसकी प्रेजेंसी में कर रहे हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, सेम रिएक्शंस, द रिएक्शन विथ टॉलीन। टॉलीन मींस साइड चेन। ये कार्बन क्या है? साइड चेन कहलाएगा ना, 6 कार्बन की रिंग है, और ये कौन सा कहलाएगा आपका? साइड चेन कार्बन कहलाएगा। रिएक्शन विथ क्लोरीन। देखिए बेटा डिफरेंस क्या है? टेम्परेचर। यहां क्या नहीं है? एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3 नहीं है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब आप सोच रहे होंगे क्या होगा? आपने कहा होगा वही होगा कि हाइड्रोजन डिस्प्लेस फ्रॉम द ऑर्थो लोकेशन और पैरा लोकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थोक्लोरोटॉलीन और पैराक्लोरोटॉलीन। नहीं होगा, तो किसका फॉर्मेशन हो गया? इन द प्रेजेंस ऑफ द sunlight and heat, the bond of Cl break down in a homolytic cleavage. वहां पर कौन सा क्लीवेज होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 हेक्टोलिटिक क्लीवेज। यहां पर कौन सा होगा? होमोलिसिस, ब्रेक डाउन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। दिस इज अ डिफरेंस। वहां पर AlCl3 है तो हेक्टोलिटिक क्लीवेज हुआ था, क्लोरीनियम आयंस बना था। यहां पर सनलाइट है, टेम्परेचर है, तो यहां ब्रेकडाउन कैसा होगा? होमोलिटिक क्लीवेज होगा, होमोलिसिस बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा, और फॉर्मेशन किसका होगा? फ्री रेडिकल। दिस रिएक्शंस प्रोग्रेस बाय द फ्री रेडिकल। अब क्या होगा देखिए बेटा, आपको बताया था हमने SN1 और SN2 में कौन सा स्टेबल होता है? बेंजाइल कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। यहां पर क्या बनेगा? बेंजाइल फ्री रेडिकल बनेगा। बेंजाइल फ्री रेडिकल क्या होता है? स्टेबल होता है, तो रिएक्शंस प्रोग्रेस हो जाएगी, ठीक है ना? और हाइड्रोजन कौन सा हम सब्स्टिट्यूटेड कर रहे हैं? देखिए कौन सा? साइड चेन का। तो इसको क्या बोलेंगे? क्या नाम इस टॉपिक का? साइड चेन हेलोजिनेशन। किसका हेलोजिनेशन कर रहे हैं हम? इस कार्बन, जो कौन सा कार्बन है? साइड चेन कार्बन है, उससे लगा हुआ हाइड्रोजन क्लोरीन से डिस्प्लेस हुआ। तो एरोमेटिक न्यूक्लियस का हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं हो रहा, साइड चेन पर, साइड चेन में जो कार्बन है उससे लगी हुई हाइड्रोजन है, वो सब्स्टिट्यूटेड हो रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? साइड चेन हेलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या फॉर्मेशन हुआ? याद है ना इसका नाम? बेंजाइल क्लोराइड। और साथ में क्या बनेगा? HCl। ये रिएक्शंस किससे प्रोग्रेस होगी? किससे प्रोग्रेस होगी? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड हीट। चलिए एक रिएक्शंस और देखते हैं, बहुत अच्छी रिएक्शंस है, इसको बेटा याद रखना। क्या रिएक्शंस है? ये 6 कार्बन की चेन है, थोड़ा इसको गौर से देखिएगा, है ना? इसमें हमने साइड चेन लगाई, और साइड चेन में कितनी कार्बन लगा दी हमने? 2 कार्बन लगा दिए। इससे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, इससे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। रिएक्शंस किससे कर रहे हैं हम? सेम प्रोसेस से, रिएक्शन विद Cl2।
किसकी प्रेजेंसी में? सनलाइट है। और क्या है? टेम्परेचर है। टेम्परेचर कितना मान लिया हम? चलिए थोड़ा सिंपल कर दिया, 273 केल्विन मान लिया। क्या होगा? कौन सा हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा? यहाँ साइड चेन में 2 कार्बन है, फर्स्ट एंड सेकंड। ये वो कार्बन है जो किससे अटैच है? एरोमेटिक न्यूक्लियस से अटैच है। तो किस कार्बन के हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड होते हैं? उस साइड चेन के कार्बन के जो किससे अटैच है? एरोमेटिक न्यूक्लियस से अटैच है। इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कह सकते हैं, फर्स्ट कार्बन कह सकते हैं। तो ये जो कार्बन है CH2 फॉर्म में, इस कार्बन से लगी 2 हाइड्रोजन कौन से का है? अल्फा हाइड्रोजन है। वो किससे सब्स्टिट्यूटेड होंगे? क्लोरीन से। कौन सी रिएक्शंस नहीं होगी? अरे भाई साइड चेन में दूसरा कार्बन भी है, उसके हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं होंगे। देखिए कर दिया हमने, कर दिया ना 1। अभी एक और बचा है और ये कर दिया CH3। और आगे चलते हैं। अब इसमें एक हाइड्रोजन और है ना, चलिए इसको सब्स्टिट्यूट कर दे रहे। किससे रिएक्शन हो रही है? Cl2 से। वाई प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? HCl होगा ना। वाई प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पर? HCl। ये H हो गया और ये Cl हो गया। अब फिर से रिएक्शन हुई। कितना टेम्परेचर चल रहा है आपका? 273 केल्विन। साथ में क्या है? सनलाइट है। क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन ये किससे रिएक्शन कर लेगा? Cl से। क्या वाई प्रोडक्ट हो जाएगा? HCl। चलिए वाई प्रोडक्ट ही बना देते पहले। अब क्या होगा? सेकंड हाइड्रोजन is also displaced by क्लोरीन। ये फर्स्ट कार्बन इस अल्फा कार्बन था, इससे एक H डिस्प्लेस कर दिया, दूसरा H भी डिस्प्लेस कर दिया। किससे नहीं डिस्प्लेस होंगे? उस कार्बन से जो एरोमेटिक न्यूक्लियस से अटैच नहीं है। कौन सा अटैच नहीं है? ये CH3 अटैच नहीं है, तो इसके हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं होंगे। किसके होंगे बेटा? जो आपका एरोमेटिक न्यूक्लियस से अटैच है। चलिए और देखते हैं, एक रिएक्शन और लेते हैं। CH3 टॉलिन हो गया ना। एक होता है थायोनिल क्लोराइड और एक होता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, SO2Cl2। ये क्या है? सल्फ्यूरिल क्लोराइड है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड टेम्परेचर रेंज इज 475 केल्विन। क्या होगा? कुछ नहीं, वही हाइड्रोजन क्या होगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। कौन सा हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा? जो साइड चेन से लगा हुआ है ना। रिएक्शंस किससे प्रोग्रेस होगी? फ्री रेडिकल से। क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड का HCl हो गया। ठीक है ना। अब एक Cl बचा है तो क्या बनेगा? HCl बनेगा। और बाई प्रोडक्ट क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगा। सभी गैस निकल जाएंगी तो क्या मिल जाएगा आपको? बेंजाइल क्लोराइड। यानी जो रिएक्शंस हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड सनलाइट, किसके द्वारा होती है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के द्वारा रिएक्शंस प्रोग्रेस होती है। कैसे रिएक्शन प्रोग्रेस होती है बता दे रहे आपको। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, द बॉन्ड ब्रेकिंग इन द homolytic form, each chlorine carries a one free electrons। 2 क्लोरीन बनेंगे ना बेटा फ्री रेडिकल। तो ये आपका जो क्लोरीन है वो क्या है? दैट वी हैव एज फ्री रेडिकल। तो रिएक्शंस किसके द्वारा प्रोग्रेस होगी? बाय द फ्री रेडिकल। सेकंड टॉपिक फ्रॉम डायजोनियम क्लोराइड। डायजोनियम सॉल्ट होता है, ये होते क्या है जरा इसकी बात कर ले पहले, है ना। कौन सा? डायजोनियम सॉल्ट। कैसे बनती है? ये बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर हम किसको अटैच कर दे रहे हैं? NH2। क्या नाम होगा इसका बेटा? अमीनो बेंजीन, originally called is aniline। इसकी रिएक्शंस किससे करते हैं? नाइट्रस एसिड एंड HCl। रेंज ऑफ टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? एमीन ग्रुप 2
एंड वाई प्रोडक्ट इज, ये कौन सा ग्रुप है? एमीन। ये ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया? इसमें कन्वर्ट हुआ डायazonium ग्रुप में। देन द प्रोसेस कॉल्ड, एक नाम को सुनना बेटा, डायazotization। एमीन ग्रुप कन्वर्ट इन diazonium group in the presence of nitrous acid and HCl. Then this process called diazotization. अब HNO2 के लेबोरेटरी में पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। तो हम कैसे बनाते हैं? नाइट्रस एसिड स्टेबल नहीं है। कौन स्टेबल होता है? सोडियम नाइट्राइड। किसकी रिएक्शंस करते हैं? HCl के साथ। कितने टेम्परेचर पर? 2732 278 केल्विन। किसका फॉर्मेशन होगा? नाइट्रस एसिड का। यानी नाइट्रस एसिड को हम रिएक्शंस में बनाते हैं और यहीं पर वो कंज्यूम हो जाता है। और अमीनो बेंजीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड in the range of temperature 0 to 5 degrees Celsius are 273 to 278 Kelvin and formation benzene diazonium chloride. This process called diazotization. Here amine group convert in diazonium group. The name of process diazotization. अब आते हैं हमारे पास क्या है? हमारे पास है बेंजीन, बट एक लाइन को सुनना क्योंकि हम वही बनाते जाएंगे। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ HBr। किससे रिएक्शंस करा रहे हैं हम? HBr से। इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ब्रोमाइड Cu2Br2। क्या होगा? डाइएजोनियम क्लोराइड substituted by the Br and formation of ब्रोमोबेंजीन। ये किस प्रकार से ब्रेक डाउन होगा? ये इसकी ब्रेकिंग है। प्लस N2 प्लस HCl, डाइएजोनियम ग्रुप टू हेलोजन। Benzene diazonium chloride react with HBr in the presence of cuprous bromide and product here bromobenzene, nitrogen and HCl. This reaction is called Sandmeyer reactions. Sandmeyer reactions क्या है? When benzene diazonium chloride react with halo acid in the presence of cuprous halide, HBr HCl हो सकता है। HCl होगा तो Cu2Cl2 होगा। When benzene diazonium chloride react with halo acid in the presence of cuprous halide, benzene diazonium chloride change in haloarine. This reaction is called Sandmeyer reactions. क्या नाम है बेटा इसका? Sandmeyer reactions. अभी हमने किसको लिया था? HBr को। अब किसको लेते हैं? देखते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम, 2 नाइट्रोजन होगा ना, क्लोराइड रिएक्शन विथ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। क्या प्रोडक्ट होगा? अरे भाई वहां ब्रोबेंजीन बनाते हैं, यहां पर क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। एंड N2 plus HCl. This is the second example of Sandmeyer reactions. कौन सी रिएक्शन है? Sandmeyer reactions. सैंडमेयर के बाद सेकंड रिएक्शन है गाटरमान रिएक्शंस। सैंडमेयर रिएक्शंस में थोड़ा सा और देख लीजिए। यहां पर हमने किसको फॉर्म किया है? अगर आपका मन है आयोडोबेंजीन बनाने का तो रिएक्शंस कैसे बनाएंगे, है ना? थोड़ा आगे लेते स्लाइड को। ये सैंडमेयर रिएक्शन से अलग हटके है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्लस
Ki। यहां पर हम सैंडविच रिएक्शन नहीं कहेंगे। सो क्यों नहीं कहेंगे बेटा? क्योंकि यहां पर हम लोग हैलो एसिड और क्यूप्रस हैलाइड को नहीं ले रहे हैं ना। द प्रोडक्ट इज आयोडोबेंजीन प्लस N2 प्लस और क्या बन जाएगा बेटा? KCl, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड टू आयोडोबेंजीन। अगर आपके मन में फ्लोरोबेंजीन को बनाना है तो कैसे बनाएंगे, है ना? फ्लोरोबेंजीन का प्रोडक्शन देखते हैं कैसे होता है। तो मैं इसको आगे कर देता हूं। HF plus boron trifluoride. The first is product HbF4, यानी पहले HF और VF3 क्या एज ए लीविस एसिड कंबाइन होंगे, HbF4 को बनाएंगे। फिर क्या होगा? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड प्लस, रेंज टेम्परेचर कितना है बेटा? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस और 273 to 278 केल्विन। क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? बेंजीन डाइएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। क्या बनेगा बेटा? बेंजीन डाइएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। बेंजीन डाइएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। ये क्या है? HF प्लस VF3 हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद HbF4 एंड फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। इसका फॉर्मेशन हो गया। ये जो कंपाउंड है ये अनस्टेबल होता है, इट ब्रेक डाउन। जब ब्रेक डाउन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 और क्या बन जाएगा? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। यानी आपके पास क्या बना था? यहां बना दे रहे फिर से एक बार समझाने के लिए। बेंजीन डाइएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट बना था, ये फार्मूला है उसका। BF4 नेगेटिव, ये अनस्टेबल होता है, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। और किसका फॉर्मेशन कर दिया इसने? फ्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड लीविस एसिड। यानी हम फ्लोरोबेंजीन को डायरेक्ट नहीं बनाते क्योंकि रिएक्शंस कैसे होती है? एक्सप्लोसिव नेचर की होती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? HF को और VF3 को रिएक्ट कराते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड बनता है। फ्लोरोबोरिक एसिड जो बना है HbF4 वो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है और रिएक्ट होने के बाद क्या बनाता है? बेंजीन डाइएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट बना देता है। बेंजीन डाइएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट क्या है बेटा? अनस्टेबल है, वो ब्रेक डाउन होकर क्या बनाता है? फ्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन एंड VF3। तो फ्लोरोबेंजीन हो गया। सबसे पहले कौन सा हुआ था बेटा? क्लोरोबेंजीन, देखिए भी आता है, ठीक है ना? क्लोरोबेंजीन हो गया और क्लोरोबेंजीन के बाद क्या हो गया था? ब्रोमबेंजीन हो गया था और उसके बाद क्या हो गया था आपका? आयोडोबेंजीन। यानी ऑल हैलाइड haloarin form from benzene diazonium salt। अब बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट क्या है? किस प्रोसेस से बनाते हैं आप? डाइएजोटाइजेशन से। कैसे बनाते हैं? फिर से बता देते आपको एक बार ना, ताकि आपको याद हो जाए। अमीनो बेंजीन प्लस HNO2 नाइट्रस एसिड प्लस HCl। द रेंज ऑफ टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस आर 273 to 278 केल्विन। क्या होगा? अमीन ग्रुप टू डाइएज़ोनियम ग्रुप, ठीक है, ग्रुप कन्वर्जन। एक ग्रुप को आपने दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया एंड प्रोसेस कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन। और फॉर्मेशन किसका होगा बेटा? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। अगर Br होगा तो ब्रोमाइड बोल देते, I हुआ तो आयोडाइड बोल देते। अब आते हैं नेक्स्ट गाटर-बॉर्न रिएक्शंस। गाटर-बॉर्न रिएक्शंस बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। कैसी रिएक्शंस है जरा फिर से देखते हैं। आपने किसको लिया है?
बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को लिया। ठीक है, रिएक्शंस किससे करा दिया आपने? HI से। किसकी प्रेजेंसी में रिएक्शंस कर रहे हैं? यहां पर क्या होगा ये आपको समझना है। यहां पर हम कॉपर को लेंगे, क्यूप्रस हैलाइड को नहीं लेंगे। यहां पर हम HBr नहीं लेते, HI नहीं लेते हैं, हम यहां पर लेते हैं, मान लेते हैं HBr, है ना। तो HBr लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। किसको लिया बेटा हमने? HBr को लिया, ताकि वहां पर हमने क्या बनाया था आपके सामने? ब्रोमोबेंजीन बनाया था और क्लोरोबेंजीन। तो क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट तो वही होगा, कौन सा? ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 और क्या निकल जाएगा? HCl। सेकंड क्या है देखते हैं। तो इसका डिफरेंस भी देखेंगे, क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। अब आपने क्या ले लिया? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को ले लिया, साथ में क्या लिए? HCl लिए। किसकी प्रेजेंसी है? ओनली प्रेजेंस ऑफ कॉपर। क्यूप्रस हैलाइड नहीं होगा। गाटर वन में कौन था? क्यूप्रस हैलाइड था। यहाँ क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। साथ में क्या बनेगा? N2 और साथ में क्या बनेगा? HCl। इस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर हम किसको ले रहे हैं? कॉपर को ले रहे हैं। तो इस रिएक्शंस का नाम क्या है? गाटरमान रिएक्शंस। इस रिएक्शन को थोड़ा सिंपल फॉर्म में यहाँ लिख दे रहे। क्या नाम है इसका? गाटरमान रिएक्शंस। और दोनों में डिफरेंस भी हो जाएगा, बहुत सिंपल है। क्या किया आपने? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को लिया। किससे रिएक्शंस करा रहे हैं आप? HBr से। किसकी प्रेजेंसी में? कॉपर की। क्या प्रोडक्ट होगा? ब्रोमोबेंजीन। वाई प्रोडक्ट क्या होंगे? N2 एंड HCl। अगर रिएक्शंस किससे करा दें आप? HCl से। किसकी प्रेजेंसी में? कॉपर की। प्रोडक्ट क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। और क्या होगा? N2। साथ में क्या होगा? HCl। क्या डिफरेंस है? सैंडवेयर में हम क्यूप्रस हैलाइड लेते हैं, गाटरमान में कॉपर पाउडर। अब आते हैं बेटा हुंसडी का रिएक्शन। बहुत सिंपल सी रिएक्शन से, कुछ भी नहीं है। बेंजीन हो गया, ठीक है ना। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, H निकालते हैं तो क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलेट ना। तो ये बेंजोएट हो गया। ये पर क्या लगा दिया? सिल्वर। तो क्या नाम होगा इसका? सिल्वर बेंजोएट। किससे रिएक्शंस करा दे हम? ब्रोमीन से। ये हुंसडी का रिएक्शंस कहां देखी थी आपने? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ब्रोमीन से रिएक्शंस होती है, बनता है। क्लोरीन से रिएक्शंस होती है, बनता है, मींस ब्रोमो एथेन बनेगा, ब्रोमो मैथेन बनेगा, क्लोरोमेथेन बनेगा। लेकिन जब आयोडीन को लेते हैं तो क्या बनता है? ईस्टर। किसकी प्रेजेंसी में रिएक्शंस होती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड की। कार्बोक्सिलिक ग्रुप किससे डिस्प्लेस होता है? किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हैलाइड ग्रुप में। क्या हुआ? सिल्वर बेंजोएट रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड। The carboxyl group convert into halide group or silver benzoate to bromobenzene। और क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? AgBr। और साथ में क्या बनेगा? CO2। तो इस रिएक्शंस को नाम क्या देते हैं? हुंसडी का रिएक्शंस कहते हैं। सिल्वर बेंजोएट react with bromine in the presence of the carbon tetrachloride. The product here bromobenzene, silver bromide and carbon dioxide. This reaction is called, इस reactions का नाम क्या है? हुंसडीकर reactions। And thank you। और इसका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से आपने क्या क्या देख लिया? थोड़ा सा एक बार फिर से याद दिला दें आपको, ताकि रिएक्शंस में आपको कंफ्यूजन कभी होता है तो अब याद हो जाए क्या होता है ये ना। ये आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हो गया। अगर हम किसको ले लेंगे? कॉपर। और किसको लेंगे? HBr को। तो क्या बनेगा बेटा? ब्रोमो बेंजीन। कौन सी रिएक्शन से ये? गाटर मान। अगर हम किसको लेते हैं? क्यूप्रस हैलाइड
और किसको लेते हैं, हेलो एसिड को लेते हैं। क्या बनेगा, प्रोडक्ट तो सेम रिएक्शंस ली ना हमने, ब्रोमोबेंजीन और क्या बनेगा, N2 HCl। इसका नाम क्या है, सैंड मेयर रिएक्शंस। क्योंकि कभी डिफरेंस में आपको कंफ्यूजन होता है, तो सैंड मेयर में क्यूप्रस हैलाइड रहता है और गाटरमान में कॉपर रहता है। तो ये आपका हो गया प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। किस किस से होगा, हाइड्रोकार्बन मींस बेंजीन और टॉलिन से हुआ। दूसरा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हो गया। थर्ड बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में क्या था, एक गाटरमान रिएक्शन, एक सैंडविच रिएक्शन है। और थर्ड क्या है, हुनसिटिकल रिएक्शंस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन और क्लोरोबेंजीन इन नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। थैंक यू वेरी मच।